हैप्पी न्यू ईयर। नए साल के खास मौके पर प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के सभी दर्शकों के लिए हम लाए हैं एक स्पेशल ज़ूमबास्टिक एपिसोड। आज आपकी फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने आपके लिए भेजे हैं न्यू ईयर के खास विशेस। साथ ही और भी बहुत कुछ खास है आज के स्पेशल एपिसोड में, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अपने तेवर को स्टार अर्जुन कपूर से लिंकअप की बातों को सोनाक्षी ने एक्सेप्ट किया या डिनाई। बताएंगे आमिर खान अपनी किस लत से आजकल है बहुत ज्यादा परेशान। फिल्म जग्गा जासूस के लिए रणबीर कपूर किस खास लुक की कर रहे हैं डिमांड। बताएंगे 1 जनवरी को विद्या बालन कैसे सेलिब्रेट करेंगी अपना बर्थडे। और साथ ही बताएंगे क्या अनुराग कश्यप फिल्म अगली की रिलीज डेट को लेकर नहीं थे खुश। Hi, this is Priyanka Chopra and here's wishing all the viewers of Zoom a very, very happy new year. Happy New Year, Zoom viewers from Arjun Kapoor and Sonakshi Sinha. 2014 has been great for me. I'm sure it's been great for you, but I'm sure 2015 will give you much more than your heart desires. Have a blast. Happy holidays to everybody and have a lovely time. Be safe, party hard and spread the love. A very happy new year to all of you. I'm wishing you a very, very, very happy new year. Hi, this is Bipasha Basu. And Karan Singh Grover. Wish all the viewers happy and prosperous new year. Zoom के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से क्रिसमस और न्यू ईयर की बधाइयाँ, शुभकामनाएं। All the very best. फिल्म तेवर की शूटिंग के बाद से ही अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा की लिंकअप की न्यूज मीडिया में हर जगह छाई हुई है। लेकिन क्या ये खबरें सिर्फ और सिर्फ रूमर है या फिर इन खबरों में है किसी भी तरह की सच्चाई? आइए जानते हैं खुद सोनाक्षी सिन्हा से। What is the funniest gossip you've heard in 2014 about anything? Funniest gossip, every day some rubbish keeps coming in. Yeah. This link up with Chai, link up with Arjun now. Yeah. 2014 को बाय कहने के साथ साथ सोनाक्षी ने अपने नाम से जुड़े एक रीसेंट लिंकअप के रूमर को भी कह दिया है गुड बाय, वो भी एक्सक्लूसिवली जूम पर। What is the funniest gossip you've heard in 2014 about anything? Funniest gossip, every day some rubbish keeps coming in. Yeah. This link up with Chai, link up with Arjun now. Yeah. You laugh about it, and plus I've known Arjun for so long. Yeah. We've worked on an entire film together. He lives behind my house. How difficult is it for him to pick up the phone and just say, "Come on, let's go for a movie." Come on. Yeah. So yeah, these things you don't pay attention to. जी हाँ, जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए सोनाक्षी ने फाइनली अर्जुन कपूर से सुनने में आए उनके रीसेंट लिंकअप रूमर्स को गलत बता दिया है, जो हाल ही में अर्जुन सोनाक्षी की एक मूवी डेट के बाद शुरू हुए थे। How do you? I mean, people have been linking with Arjun for a long time now. So what do you? No, how do ever you since react to they were. that? Ever since they saw us going for a movie together. Going for a movie together. बस मतलब means you don't have guy friends. Yes. You go for movies. Yeah. All the time. Come catch me with camera, but no one wants to know. Exactly. But so like, have you stopped going for these movies, or you still go for these? No, movies? now we've been promoting, so we've No time for these not had time. But I think it's very simple. I mean, it's you just laugh about these rumors. Yeah, you laugh about it, and plus I've known Arjun for so long. Yeah. We've worked on an entire film together. He lives behind my house. How difficult is it for him to pick up the phone and just say, "Come on, let's go for a movie." Come on. Yeah. So yeah, these things you don't pay attention. और अब जूम पर सोनाक्षी के इस एक्सक्लूसिव कन्फेशन से क्लियर होता दिख रहा है कि कैसे एक बार फिर एक फिल्म में एक साथ काम कर रहे दो स्टार्स के लिंकअप का झूठा फसाना बन गया है। हालांकि सोनाक्षी से पहले खुद अर्जुन कपूर भी एक्सक्लूसिवली जूम पर कुछ ऐसी ही सफाई दे चुके हैं। Sonakshi, you're not dating. No, yeah, I've always maintained that I've known her since school. जो कोई मानने को तैयार नहीं, देखिए कोई मानने को तैयार नहीं होता कि एक इंसान की इक्वेशन आउटसाइड वर्क भी होती है। She stays in the same area as me. We've known each other. She is Ria's friend. She's been Ria's friend for quite a few years. Same school. We had the same set of friends, but we never socially hung out because we were not working together, so we didn't have that extra comfort. We shot for a film for 6-7 months. So today, if we step out for a film, it's not like we've only gone once. We've gone 20 times. वो पेपर में एक दिन आया है तो ऐसा लगता है कि ये पकड़े गए, देखिए सनसनीखेज फिर से। यानी अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर अर्जुन सोनाक्षी के रूमर्ड लिंकअप का किस्सा कैसे देखते ही देखते बॉलीवुड की मसालेदार गॉसिप बन गया। पर अब जब अर्जुन और खुद सोनाक्षी भी अपनी सफाई देने सामने आ गए हैं, तो वी होप इनके रूमर्ड लिंकअप की मन घड़ंत कहानी पर काफी कुछ ब्रेक जरूर लग जाए। इसके बावजूद भी अर्जुन सोनाक्षी के लिंकअप से जुड़ा अगर कोई रूमर सामने आ जाए तो तुरंत भरोसा करने से पहले
जूम पर इन स्टार्स के क्लैरिफिकेशन का थोड़ा इंतजार जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको पूरी सफाई का पता चल पाएगा। What is the funniest gossip you've heard in 2014 about anything? Funniest gossip, every day some rubbish keeps coming. Yeah. This link up with Chai, link up with Arjun now. Yeah. Actually, you're not dating. No, yeah, I've always maintained that I've known her since school, जो कोई मानने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। आमिर खान आजकल अपनी एक आदत से परेशान है। आमिर खान ने कई बार अपनी इस आदत से निजात पाने की कोशिश की है, लेकिन आमिर इसमें अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। वेल, कौन सी है ये आमिर की आदत? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। आमिर खान ने हमेशा कहा है कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी स्मोकिंग की आदत है। हर बार आमिर खान अपनी ये बुरी आदत छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रह रहकर अक्सर स्ट्रेस में वो स्मोक करना शुरू कर देते हैं। सोर्सेज का कहना है कि फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की रिलीज के बाद से आमिर खान पर काफी प्रेशर आ गया था। हर कोई ये कह रहा था कि हैप्पी न्यू ईयर को बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म चैलेंज कर सकती है तो वो है पीके। आमिर खान के कंधों पर एक्सपेक्टेशन का भार इतना ज्यादा आ गया था कि उन्होंने स्मोकिंग शुरू कर दी थी। पर अब कहा जा रहा है कि आमिर चाहने के बावजूद स्मोकिंग छोड़ नहीं पा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आमिर नितेश तिवारी की फिल्म कुश्ती की तैयारी भी अपनी स्मोकिंग की आदत की वजह से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जूम को आमिर के करीबियों ने बताया है कि पीके की सक्सेस के बाद आमिर काफी रिलीव्ड फील कर रहे हैं और उन्होंने अब अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही बनाया है कि वो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। साफ है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने खुद से एक बहुत बड़ा कमिटमेंट कर लिया है। साथ ही उनकी फिल्म कुश्ती के डायरेक्टर भी आमिर से यही रिक्वेस्ट कर रहे थे। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आमिर अपने इस रेजोल्यूशन को पूरा करने में कितने कामयाब होते हैं। फॉर एलिका श्रीवास्तव, जूम मुंबई। रणबीर कपूर फिल्म जग्गा जासूस के लिए अपने एक नए लुक को ट्राई करना चाहते हैं, जिसके लिए रणबीर अपनी फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु को कन्विंस करने में लगे हुए हैं। वेल, कैसा हो सकता है रणबीर का ये लुक? आइए देखते हैं। जूम को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि रणबीर कपूर अपनी फिल्म जग्गा जासूस के लिए नए लुक की डिमांड कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो द एक्टर वांट्स टू ब्रिंग इन अ चेंज इन हिज लुक। नाउ व्हाट दिस चेंज इन लुक विल लुक लाइक, वी विल टेल यू। Ranbir will go for a weird curly look in his film Jagga Jasoos. You may have not seen the rock star in such a look. वैसे जग्गा जासूस का रिसेंटली एक पोस्टर इंटरनेट पर आउट हुआ था जिसमें रणबीर के लुक्स उनके यूजुअल लुक्स जैसे ही थे, with just a change in his hair color. But now as the actor is not that satisfied with his look, complete change आ गया है इस फिल्म के स्केड्यूल में। वैसे बता दें कि रणबीर के इस नए लुक में कई पोर्शंस शूट भी हो गए हैं। वैसे आपको बता दें कि रणबीर के इस नए लुक में कई पोर्शंस शूट भी हो गए हैं एंड नाउ देयर आर अ फ्यू अदर सीन्स टू बी शॉट। नाउ वी आर वंडरिंग कि क्या आखिर इस लुक चेंज से फिल्म पर कुछ असर पड़ेगा। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने इस साल अपना न्यू ईयर मुंबई की जगह पेरिस में सेलिब्रेट करने का फैसला किया है। वेल, क्या है जैकी की इस डिसीजन की वजह? आइए देखते हैं। जैकलीन फर्नांडिस अपना न्यू ईयर पेरिस में मना रही है and this is one piece of information Zoom has got exclusively which we are revealing to you guys. So all you ardent fans of Jacqueline who are expecting her to be in the city this year, let us tell you that the Sri Lankan beauty is all set for a Paris trip with a friend. Well, Jacqueline के इस Paris trip के पीछे भी एक reason है। दरअसल the actress is tired of being constantly clicked and linked up with every other actor she is seen these days. And recently, her link-up rumors with her Kick co-star Salman Khan did not go down too well with the actress. That's why she chose to stay away from the media and rather bring in 2015 with her friend. Well, Jacqueline, भले ही आप मीडिया से कितनी भी दूरी बना ले, कहीं ना कहीं आपके न्यू ईयर के पिक्चर्स रिवील हो ही जाएंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई। विद्या बालन 1 जनवरी यानी आज के दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। ऐसे में क्या है विद्या बालन की बर्थडे प्लान्स? आइए देखते हैं इस खास स्टोरी में। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं इन अ बिग बॉलीवुड वे, पर विद्या बालन इज नॉट फॉलोइंग द नॉर्म। विद्या बालन अपनी फिल्म हमारी अधूरी कहानी की शूटिंग में बिजी थी और फाइनली रैप हो गया है उनकी अपकमिंग फिल्म हमारी अधूरी कहानी का शेड्यूल। इस फिल्म की वजह से विद्या काफी समय से अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी। ऐसे में अब विद्या ने फैसला किया है कि वो अपने बर्थडे यानी 1 जनवरी के दिन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ पूरा वक्त स्पेंड करेंगी।
वैसे विद्या के हस्बैंड सिद्धार्थ रॉय कपूर बॉलीवुड की हर पार्टी में नजर आते हैं। ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज के दिन वो विद्या के लिए एक बड़ी बर्थडे पार्टी थ्रो करेंगे, जहां बॉलीवुड का हर बड़ा स्टार नजर आएगा। लेकिन सोर्सेज का कहना है कि विद्या ने खुद सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट की है कि उनके बर्थडे पर कोई बड़ी पार्टी न थ्रो की जाए, क्योंकि वो अपना पूरा वक्त अपने फैमिली मेंबर्स के साथ स्पेंड करना चाहती हैं। वेल, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी बर्थडे विद्या। फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम मुंबई। फिल्म अगली रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला है और जूम को खबर मिली है कि अनुराग कश्यप और फिल्म के प्रोड्यूसर्स के बीच इस फिल्म को लेकर कुछ अनबन भी हुई है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। अनुराग कश्यप की फिल्म अगली, जिसे फिल्म फेस्टिवल्स में जबरदस्त रिस्पांस मिला था, ये फिल्म इंडिया में रिलीज के बाद कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है और अब जूम को खबर मिली है कि अगली के प्रोड्यूसर और अनुराग कश्यप के बीच इस फिल्म की रिलीज को लेकर अनबन चल रही थी। जी हां, खबर आई है कि अगली के प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि इस फिल्म को 26 दिसंबर को रिलीज किया जाए, लेकिन अनुराग इस रिलीज डेट से सहमत नहीं थे। सोर्सेज की माने तो अनुराग का कहना था कि फिल्म पीके जैसी बड़ी फिल्म के लगभग साथ में इस फिल्म को रिलीज करना सही आइडिया नहीं है। अनुराग के मुताबिक राजकुमार हिरानी की इतनी बड़ी फिल्म को ऑडियंसेस लगभग 2 वीक तक देखने जरूर जाएगी। ऐसे में पीके की रिलीज के ठीक 1 वीक बाद फिल्म रिलीज करने का फैसला अनुराग को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जब फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने मीडिया में इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया तो अनुराग को फाइनली ना चाहते हुए भी इस फिल्म को जमकर प्रमोट करना पड़ा। यही नहीं, अनुराग ने अपने वेल विशर्स से भी इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए कहा। फिल्म अगली को बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का रिस्पांस मिला है, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अनुराग कश्यप ने अपने फिल्म के मेकर्स को बिल्कुल सही आइडिया दिया था और अनुराग के इस आइडिया को ना मानने की वजह से आज अगली के मेकर्स को नुकसान उठाना पड़ा है। फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि एकता कपूर की अपकमिंग क्रिकेटर अजहरुद्दीन की लाइफ पर बेस्ड फिल्म में प्राची देसाई एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आ सकती है। लेकिन क्या इस खबर में है किसी भी तरह की सच्चाई, आइए देखते हैं। हर तरफ खबरें हैं कि प्राची देसाई हैज बीन फाइनलाइज्ड फॉर नौरीन्स रोल। जी हां, क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के ऊपर बनने वाली बायोपिक में प्राची करने वाली है उनकी फर्स्ट वाइफ का रोल। बट प्राची अब तक इस खबर पर मोहर लगाने के लिए रेडी नहीं है। Well, actually nothing is official yet, so शायद आपको थोड़ा और वेट करना पड़े, you know, for some official announcements. You know, whatever is happening, you will hear of in January 2015. But तब तक मैं, I can just say that I'm reading it. It's very interesting, but it's not official yet. Well, सुनने में तो ये भी आया था कि प्राची फर्स्ट वाइफ से ज्यादा सेकंड वाइफ यानी कि संगीता बिजलानी का रोल प्ले करने में इंटरेस्टेड है। Whatever you've read is not anything that I've said, so it's not official, but I think it's going to make for a very nice film. हम आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज सेकंड वाइफ के रोल यानी कि संगीता बिजलानी के लिए करीना कपूर खान को फाइनलाइज कर लिया गया है। अब ऐसे में प्राची का सेकंड वाइफ का रोल तो कट हो चुका है, बट वी होप कि प्राची को ये फर्स्ट वाइफ का रोल मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद ही बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। 2014 स्टार्स की रिलेशनशिप्स के मामले में काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन क्या 2015 इन स्टार्स की रिलेशनशिप्स के लिए होगा ठीक ठाक? आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास स्टोरी में। वैसे अगर हमने फिल्म्स और फेसेस की बात की तो अगले साल ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन देखने वाली जोड़ीज को कैसे भूल सकते हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कि 2015 में ऐसे कौन से कपल है जो रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में ही आपको एंटरटेन कर सकते हैं। शुरू करते हैं रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के साथ, जहां इन दोनों की एंगेजमेंट की खबरें जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं इन्होंने खुद का एक अपार्टमेंट रेंट करके अपने रिलेशनशिप स्टेटस को और भी ज्यादा कंफर्म कर लिया है। ऐसे में लगता तो जरूर है कि 2015 की शुरुआत में ये लव बर्ड्स इनके फैंस को कोई खुशखबरी सुनाएंगे। रणबीर और कैट की तरह अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने भी अपना खुद का एक अपार्टमेंट खरीदकर मीडिया और अपने फैंस को अपने रिलेशनशिप के होने का कंफर्मेशन दे दिया है। विराट को हर मैच में सपोर्ट करना या फिर हॉलिडेज पर जाना, अनुष्का डज इट ऑल लाइक अ गुड गर्लफ्रेंड। तो क्या हुआ अगर वो ऑन कैमरा कभी कन्फेस नहीं करती? शी ऑलवेज ड्रॉप्स अ हिंट। I never said Virat is my good friend.
but I'm not going to. I mean, it's pretty evident what Virat is. So much. ऐसे में हर जगह विराट के साथ दिखती अनुष्का को देख ऐसा लग रहा है कि अगले साल विराट जरूर अपना बैंड बाजा और बारात ला सकते हैं। जब हम इन सब की बात कर रहे हैं तो हम रणवीर सिंह और दीपिका को कैसे भूल सकते हैं? रणवीर और दीपिका के पीडीए के किस्से तो अब पुराने हो गए हैं, पर जो बात अब भी नहीं है वो ये कि रणवीर आज भी दीपिका को मिलने के लिए वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में जा सकते हैं। जैसे कि हाल ही में वो पहुंचे कोलकाता पीकू के सेट्स पर, जहां दीपिका वो शूटिंग विद अमिताभ बच्चन। जहां भी रणवीर पहुंच गए हैं दीपिका और उनकी फैमिली के साथ न्यू ईयर मनाने के लिए, या फिर मालदीव्स हो जहां रणवीर पहुंच गए हैं दीपिका और उनकी फैमिली के साथ न्यू ईयर मनाने के लिए। वैसे तो ये दोनों अपने आप को गुड फ्रेंड्स बताते हैं, पर वी नो कि इंडस्ट्री में इस डायलॉग का डीपर मीनिंग क्या है। इसी तरह गॉसिप की गलियारों में अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा के रोमांस की खबरें भी काफी गर्म है। I actually said I want Manoj Bajpayee for promotion, but he got. That can easily be arranged. I think मैं पापा से आज ही बात करता। मैं पापा से बात करूँगी। Why will शत्रु जी कहते थे? Your पापा। So say that, no? मेरे पापा तो मेरे पापा। जी हाँ, जहाँ सोनाक्षी ने अर्जुन के फादर को पापा बुलाकर सबको क्यूरियस कर दिया था, वहीं वर्किंग इन तेवर वाज लाइक वर्किंग इन अ होम प्रोडक्शन ऐसा स्टेटमेंट दे कई लोगों की क्यूरियोसिटी को यकीन में बदल दिया था। अब इनकी बॉन्डिंग सिर्फ फिल्म की मार्केटिंग में यूज होने वाला प्रमोशनल गिमिक है या फिर जेन्युइन, ये तो तेवर के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। मूविंग ऑन, सिर्फ रियल ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी ऐसे कई कपल्स हैं जिनकी पेयरिंग देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, और ऐसी ही एक पेयरिंग है आलिया भट्ट और शाहिद कपूर, जिसे अगले साल हम देख पाएंगे इन विकास बहल्स शानदार। करीना कपूर भी कई दिनों बाद दिखेंगी बैक ऑन द सिल्वर स्क्रीन ऑपोजिट सलमान खान इन बजरंगी भाईजान। वैसे ये जोड़ी अगले साल इसलिए स्पेशल है क्योंकि जब ये दोनों एक साथ आते हैं बॉक्स ऑफिस पर कोई न कोई बड़ा धमाका जरूर होता है। शाहरुख खान की नेक्स्ट रिलीज फैन के लिए पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान का नाम सामने आया है, और अगर माहिरा गेट्स कंफर्म्ड ऑपोजिट एसआरके तो अगले साल बॉलीवुड को एक और ए लिस्ट एक्ट्रेस मिल सकती है। आफ्टर ऑल वी ऑल नो वेयर द एक्ट्रेसेस आर टुडे हु हैव वंस लॉन्च्ड ऑपोजिट एसआरके। अनदर इंटरेस्टिंग पेयरिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इज अक्षय कुमार और श्रुति हासन, जो दिखेंगे हमें अगले साल इन गब्बर। Similarly, रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा की हार्ड हिटिंग पेयरिंग इन बॉम्बे वेलवेट इज समथिंग एवरीवनस क्यूरियस अबाउट। तो देखा आपने, सिर्फ फिल्म्स ही नहीं पर अगले साल ये कपल्स भी आपको एंटरटेन कर सकते हैं, नॉट जस्ट ऑन स्क्रीन पर ऑफ स्क्रीन टू। नयोरतालो जा रहे हैं अपने मिस यूनिवर्स 2014 के पैजेंट के लिए, एंड बिफोर लीविंग शी हैड अ चैट विद Zoom where she thanked all those who helped her throughout this journey. Check out Nayonatalo's thank you note in our next story. तो मेरी तैयारी मैंने बहुत कुछ हार्ड वर्क किया है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द एंटायर पैजेंट। मैंने बहुत तैयारी की है हर एस्पेक्ट में, एंड मैं फुल्ली तैयार होके जा रही हूँ। आई हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड एंड इट्स अ कंप्लीट ब्लेसिंग टू हैव अ टीम दैट इज रिलेंटलेसली वर्किंग फॉर यू। आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर जमुना पाय फॉर हेल्पिंग मी गेट glowing skin. I would also like to thank the Disonge team for hair and makeup, Loic and Fanny. Also, I would like to thank Ritu Kumar for the Indian wear and Western designer casuals. A smile is the most important part of a pageant, and I would like to thank Dr. Sandesh Mayakar for helping me get a beautiful smile. My fitness regime and nutrition has been very strictly watched over, and I would like to thank CODS for doing a wonderful job. One of the most interesting aspects of training have been communication and behavioral skills that I've got trained for. I would like to thank BSL Training Company. I would like to thank Omkar Chitnis for making me look good in every picture that he shot, as well as Vic Doltani. Rocky Star has been completely wonderful in setting up my entire wardrobe. Every dress has been handpicked by him, and I'm extremely excited to be looking good in everything that he's put together for me. I would also like to thank the associate stylist Agnish Banerjee. My national costume is going to be beautiful. It's very elegant. It's larger than life. It's something very new that India hasn't tried out. And I would like to thank Neeta Arlola for the costume and Tejas for the jewelry. I'm extremely excited to be performing belly dance at the pageant. And Rakesh Agarwal has designed a completely beautiful emerald green outfit for me. I would like to thank Gaurav Gupta, Gauri and Nanika
Rakesh Agarwal, Monisha Jaising, Rohit Gandhi and Rahul Khanna. And I would also like to thank Falguni and Shane Peacock for designing a wonderful finale gown for me. My finale gown is exquisite and I would like to thank Falguni and Shane Peacock for making a wonderful gown for me. I wouldn't want to reveal too much. I do hope that you watch the finale on the 26th of Jan at 6:30 AM. Hi, I'm Noinita Lode, Miss Diva Universe 2014 and I will be representing India at the Miss Universe pageant in Miami. Do show me all your love and support by liking my page on Facebook, Instagram and Twitter. Be a part of my journey and wish me all the very best. Thank you. Hi, this is Priyanka Chopra and here's wishing all the viewers of Zoom a very, very happy new year. Happy New Year, Zoom viewers, from Arjun Kapoor and Sonakshi Sinha. 2014 has been great for me. I'm sure it's been great for you, but I'm sure 2015 will give you much more than your heart desires. Have a blast. Happy holidays to everybody and have a lovely time. Be safe, party hard and spread the love. A very happy new year to all the viewers. I'm wishing you a very, very, very happy new year. Hi, this is Bipasha Basu. And Karan Singh Grover. Wish all the viewers happy and prosperous new year. Zoom के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से क्रिसमस और न्यू ईयर की बधाइयाँ, शुभकामनाएं. All the very best. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.